आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सलाम दक्कन। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आइए करते हैं आगाज अपने दक्कन की खबरों का, अपने जनूबी हिंद की खबरों का। दक्कन रियासतों में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जहां केरल में एक बार फिर लॉकडाउन जारी है, वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इंतजामिया अलर्ट पर है। इस बीच कर्नाटक में कन्नाडा तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिलने को मुद्दा बनाकर कन्नाडा ग्रुप ने इंतजामिया और हुकूमत की तस्वीरें जलाई। रियासत में कोरोना के सामानों की खरीदारी, खासतौर से उसमें घपले के मामले में कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है। वहीं साबिक वजीर आजम एच.डी. देवगौड़ा ने भी येदियुरप्पा हुकूमत को नाकाम बताया है। कर्नाटक में इस दौरान केरल के मल्लपुरम के जिला कलेक्टर ने अजला में बढ़ रहे कोरोना वायरस से मुहतात रहने की लोगों से अपील की है। तो जनूबी रियासतों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फर्स्ट and the money what has been provided also misused, and there is no proper response on that when the opposition is made allegation. Now I'm sorry they have failed. They have got their own interest. There is no proper coordination among ministers. And each minister has got his own interest. I don't want to comment anything more. Even Mr. Kumaraswamy has asked us. What is the allegation? Somebody can file the petition before a court or before the competent authorities for inquiry. When these people are not prepared to give a response, vice versa, he has said that. Kondoti is identified as a large cluster area. When we say large cluster area, we see where large number of cases is reported in very short period of time, either through spread or through contacts actually. So when we see the latest report, we have done more than 500 tests in Kondoti municipality alone. After that, we got 112 cases. 112 cases we have identified as a positive cases, which is including Kondoti municipality and neighboring Grama Panchayats. So, and this is when we see that the percentage of positivity is more than 20%. Actually, that is the main reason is we are selecting samples specifically from the vulnerable group. That's the reason why highest percentage is reported. We are also going to do the sentinel survey, which is a survey happens on a normal samples, normal people, even without even people who is not having contacts, even people who has not gone out of the houses like that. और मुल्क में जारी कोरोना वायरस के दौरान भी बीजेपी हुकूमत अपने मजहबी एजेंडे से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला कर्नाटक का है, जहां पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल के सिलेबस से अजीम मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर हटा दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोरोना वायरस के चलते दर्जा 9 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस को कम किया है। सीबीएसई के बाद अब कर्नाटक सरकार ने स्टेट बोर्ड स्कूलों के सिलेबस को 30% घटा दिया है, जिसमें अजीम मुजाहिद आज़ादी, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली को हटा दिया गया है। खबर आम होते ही जहां आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं तमाम अपोजिशन जमातों ने येदियुरप्पा हुकूमत की नफरत आमेज सियासत पर सवाल उठाया है। Whatever Tipu has done, the President of India in the joint session has come and he has already reiterated his commitment, Tipu's commitment. So the draft committee, which is trying to change the curriculum, change the text, is I think it has to be debated in a large number. You can't change the history. Whether preaching things may be different, but it is we will not agree. I think we'll have to take up very seriously.
नए सिलेबस को कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि तारीख तो तारीख ही रहेगी, बदलने वाले भले बदल दिए जाएंगे। असेंबली इजलास के दौरान सदर जमहूरिया की जानिब से टीपू को अजीम मुजाहिद आज़ादी बताने का हवाला देते हुए फैसला वापस लेने की मांग की गई। BJP government previously, when they are not in power, including Yediyurappa ji and Ashok, everybody, they wear the Tipu Sultan hat, and they showed and they attended all the Tipu Sultan Jayantis. So today they are removing this one. It shows from where the instructions are coming. So this is a history. It is there in the history. I think this type of things, it cannot be happened because everybody is in the history. We should know what are the things has done. That's why whatever the BJP people are doing today, it is not good. That's why I told no, it is a history. It cannot be deleted and it is added. History is a history. स्टेट बोर्ड स्कूल के दर्जा 7 की तारीख की किताब में हैदर अली और टीपू सुल्तान का चैप्टर शामिल था। हालांकि रियासत की कुछ अजीम शख्सियतों को सिलेबस में शामिल कर हुकूमत ने अपना मकसद साफ कर दिया। टीपू मामले को लेकर जेडीएस भी हुकूमत की नफरती पॉलिसी से नाराज दिखी। पार्टी के रियासती सदर HD कुमारस्वामी ने टीपू सुल्तान को एक बहादुर हिंदुस्तानी बादशाह बताया। That is not correct. Where we have find many fighters in favor of social cause, particularly Tipu Sultan in our history. We should respect him, his principles and everything, and we have already put his words for his fought in the books and everything. We should continue it. The children should learn his fight and should know the history. नए तनाज़े के बाद KTBS की जानिब से भी सफाई आई है। तंजीम का कहना है कि उन्होंने हैदर अली या टीपू सुल्तान को नहीं हटाया, बल्कि ये बदलाव जानकारों की टीम की जानिब से लिया गया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत आई तब भी इस बात को लेकर तनाज़ा हुआ था और हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि सिलेबस से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटाया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के उन नारों पर सवाल उठना लाजमी है जिसमें पार्टी की आला क़यादत सबका साथ सबका विश्वास का दावा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़ी तंजीमें साउथ इंडिया में दहशत फैला सकती हैं, जिनका टारगेट केरल और कर्नाटक बताया गया है। इस खबर के बाद कर्नाटक के वजीर दाखिला बसवराज बोम्बई ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि उन्हीं की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह इनपुट दिया जा रहा है, लेकिन उनकी हर हालत पर नजर बनी हुई है और वो लगातार सेंट्रल एजेंसियों के राब्ते में। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन तंजीमों के भारत में 150 से 200 लोग सरगर्म हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार के अलावा भारत के कर्नाटक और केरल के लोग भी शामिल हैं। रिपोर्ट को गंभीर तरह से हम लिया है और कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमारे एक्शन के ऊपर वो रिपोर्ट बनी है। जो हमने कार्याचरण किया था जनवरी में और 2019 में 2020 में वो उसके हिसाब से भी रिपोर्ट बना है और उसके आगे है पूरा साउथ इंडिया में जो डिफरेंट ग्रुप में मॉडल में ये लोग काम कर रहे हैं और डिफरेंट नाम पे काम कर रहे हैं, वो सब पूरा उसी आधार पे ही वो रिपोर्ट बनी है। हम उस रिपोर्ट के बाद और उसके पहले ही हम पूरा सेंट्रल एजेंसी से हमारा सहयोग है। सेंट्रल एजेंसी भी हमको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन फीड करती है, दोनों तरफ से है। और उसके बाद जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके साथ पे लगातार हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रही है और ये तो निरंतर है, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आते हैं, उनके सपोर्टर्स आते हैं। उस हिसाब से जो भी
इंटेलिजेंस का इनपुट रहता है, वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मद्रास हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन के नाफिज करने को लेकर पैनल बनाने की हिदायत दी है, जिसे डीएमके अपनी जीत बता रही है। पार्टी तर्जुमान सरवनन का कहना है कि अब गेंद मोदी हुकूमत के पाले में है, देखना है कि वो पिछड़े तबके के कितने हमदर्द हैं। अदालत ने कहा कि इस पैनल में तमिलनाडु के अफसरान को भी शामिल किया जाए, जिससे पहले 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में किए जाने का हुक्म दिया था। See, it is a historic verdict in the sense that it is recognized that the rights of reservation for the other backward communities is a constitutional right, and it is directed the central government to enact laws to ensure that the OBCs get those reservations in the all India quota. In that way, this is a historic judgment, and it is a big victory for our party, for our leader Mr. M.K. Stalin and the legal wing, which was instrumental in fighting this. And this is not the first time we are doing this. We have been raising this issue consistently for the last 3 years, that these seats are not given to the OBC communities. Now the ball is in the central government's court. We'll have to wait and see what the BJP government does. Will the BJP government walk the talk? Will it listen to the Madras High Court judgment and enact a law, or appeal this judgment? There lies the true intention of this BJP government. तेलंगाना सीएम के बेटे और रियासती कैबिनेट के वजीर केटी रामा राव के यौम पैदाइश पर टीआरएस कारकुनान अवामी खिदमत कर रहे हैं। आलमी वबा कोरोना के दौरान केटीआर के यौम पैदाइश पर मेडिकल से जुड़े सामानों को तकसीम किया गया। इस दौरान टीआरएस अक़लियती मोर्चा ने मक्का मस्जिद और आसपास के इलाकों में दवा का छिड़काव किया, साथ ही स्प्रे मशीन देकर इसे जारी रखने की अपील की। टीआरएस लीडरान का दावा है कि ये काम वो केटीआर की हिदायत पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके यौम पैदाइश के मौके पर कोई तकरीब न करे, यही कहीं केक काटा जाए, ना ही कहीं केक काटा जाए। अपने यौम पैदाइश पर केटीआर ने अवामी खिदमत करने की अपील की है। नौजवान म्युनिसिपल आईटी मिनिस्टर टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब के कल सालिना मुबारक है। तो ये सारी दुनिया में जो वबा फैली है कोरोना वबा के वजह से, केटीआर साहब ने कहा कि पूरे तेलंगाना के नौजवानों से, बिलखुसूस टीआरएस पार्टी के हर एक कारकुन से कहा कि मेरे सालिना मुबारक पे कोई बुके ना बांटे, ना कोई केक ना काटे, जो भी करना है आवाम की खिदमत करे और ये कोरोना वबा से फैलने से रोकने के लिए जिससे भी जितनी खिदमत हो सके वो खिदमत करे कहकर केटीआर साहब ने कहा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज टीआरएस पार्टी के जानिब से और माइनॉरिटी सेल हम टीआरएस स्टूडेंट विंग के जानिब से यहाँ पूरे हैदराबाद के अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद से शुरू कर यूसुफैन शरीफैन और हैदराबाद के मशहूर वलियों के दरबार पर जाकर वहाँ पर सैनिटाइजर मशीन्स को और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक को दिया जा रहा है, क्योंकि वबा को रोकने के लिए आज केटीआर साहब के सालगिरह मुबारक पे ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के मशीन्स को तकसीम कर रहे हैं। आज उसी में ही आज मक्का मस्जिद में आकर यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब को हमने 2 सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के मशीन्स को यहाँ के स्प्रे करने के लिए उनको यहाँ पर हमारी तरफ से एक छोटी सी खिदमत उनको दी है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को तारीखी बनाने में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए यूपी सरकार ने कमर कसी हुई है। और इस दौरान एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के जाने पर सवाल उठाया है। ओवैसी का कहना है कि हर इंसान का किसी न किसी मजहब में अकीदा है, लेकिन बतौर वजीर आजम उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा।
यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। इस देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं और उनके भी प्रधानमंत्री जो किसी खुदा को नहीं मानते। उधर यूपी में कुर्बानी को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने कुर्बानी को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुर्बानी न करें और अगर कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दें। उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी धमकी दी। बीजेपी रुकने असेंबली गुर्जर ने कहा कि जिस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब नारियल फोड़कर उसकी जगह बलि दी जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा इस्लाम मजहब के मानने वालों से भी अपील है कि वो भी कुर्बानी न दें। उन्होंने ये भी कहा कि लोनी में एक भी कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि यूपी हुकूमत ने कुर्बानी को लेकर बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है। कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।